Welcome back and good afternoon from here. For SBL September 2019, this is going to be our second meeting. Okay, first meeting where we discussed the question paper. So this is our second meeting and the first meeting of answer. So technically we'll have 3 meetings. The first meeting already done, which was the question paper we discussed. We read the question paper. Today is the second meeting, which we will be discussing the answer. Probably 30, 40, 50% will do. And in the next meeting, we'll cover up the complete paper. The remaining yoga 40-50% will do that. Say the kuch requirements. So let's start and let's let me share my screen now. Very interesting this chocolate case study, जबरदस्त. और मैं इसे ये भी कहूँगा कि it's an exceptional case study, exceptionally easy. You not always project examiner or project examiner, ACC, SBL examiner, that you always get this chocolate thing. सही है ना, क्योंकि chocolate की तरह ही chocolate case study है. It's not only about the product industry. ये बनाया भी उसने case easy है. I don't know why. सही है, क्यों उसने 2019 में इतना easy case बनाया. Okay, let's move and let's do the requirement. The first requirement. Let me read it here. Okay, it's requirement 1 because I'm not reading the whole question paper. We already done in the first meeting. जिन बच्चों ने वो meeting नहीं देखी वो देखें. And before you start this meeting, before you start watching this meeting, मैं आपसे कहूँगा just pause it. First you do it yourself. आप पहले खुद से करें. Write some points or whatever formally करना चाहते हैं casually जैसे भी. At least you do your jogging of mind and recalling thing and all that. जब आप कुछ point jot down कर लें and then you play it and start watching this one. सही ना? वरना it's no use. अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले आंसर देख लेंगे एंड देन यू विल बी सॉल्विंग इट, जो कि अमूमन बच्चे कर रहे होते हैं, क्वेश्चन देगा, आंसर देगा और उसके बाद सॉल्व करते बोलते हैं हाँ यस 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 आई वाज थिंकिंग द सेम. नो, यू आर नॉट थिंकिंग द सेम, यू एक्चुअली गॉट सम पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड. आपके कहीं ना कहीं पॉइंट्स आपके पास मेरे आ गए, अब आपका दिमाग चलने लगा. दिस इज नॉट गुड. सही है ना, यानी हो ये रहा है कि देखो आपके पास लिमिटेड केस स्टडीज है. अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो यू एक्चुअली मिसिंग अ गुड केस स्टडी इन योर लाइफ. सही है ना, आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं. अगर आप इनको जाया ना करें बाय लुकिंग एट द आंसर फर्स्ट, फिर एक हैबिट बन जाती है आंसर को देखने की ना. रुक जाए यहाँ पे, पॉज इट फर्स्ट, सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन वॉच इट. सही ना, कम बैक. मोस्ट वेलकम. अच्छा जी, दिस इज रिक्वायरमेंट 1. You have recently attended a meeting with the finance director and the sales director, okay, where it was discussed how Dulce, the name of the company, the brand, chocolate brand, should develop and grow the business. Growth strategy. The sales director is about to make a presentation to the rest of the board on a number of sales development strategies. वो जो आपको याद है, वो जो blocks बनाए थे उसने, stores के, website and all that, and in which he proposes will assist develop Dulce in achieving its stated strategic aim of developing its product range and all that. What is the requirement? Requirement ko sune. Requirement ye hai, the sales director has asked you, you are the consultant, you are not a student, you are a consultant. The sales director has asked you to provide a set of notes, okay, set of notes to accompany the presentation. Yani you don't need to make slides and all that, or presentation aapko nahi banana, it's already there in the question papers. khud usne banayi hai, aapne sirf usko elaborate karna hai, uspe notes dene. A set of notes. Why? He has prepared, usne prepared kiya for the board, which discuss how the sales development strategy. Now what is your job? Aapka kaam kya hai कि discuss how the sales development strategies. Sales development strategy banana aapka kaam nahi, it's already there in the question paper by sales director. That's I'm repeating. Sahi hai? Discuss how the sales development strategies he has proposed, that guy, the sales director, he has proposed will assist Dulce in achieving its strategic aim. Simple. आपने ये करना है, यानी आप, this is the answer, this is the requirement actually, कि the already provided sales strategy, which is already provided by the sales director, आपने बताना है how these sales strategy gonna help this brand, Dulce brand, this company in achieving its strategic aim. यानी उसने जो बातें की हैं, जो strategies जो बताई हैं, वो किस तरह हमें हेल्प करेंगे, यानी उसको आपने एक्सप्लेन करना है. ठीक है ना, नोट्स बनाने, स्लाइड्स वगैरह कोई ऐसी चीज नहीं. प्रोफेशनल मार्क्स किसके होंगे?
business sense, commercial acumen. यानी जब growth की बात कर रहे हैं, when you talk about the growth, when you talk about the sales strategy, that how they gonna help Dulce the brand, तो यकीनन वो आपका business sense देखना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो और अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं, you already have the question paper, पेज नंबर 6 पे उसने वो strategies दी हुई है। एक strategy कौन सी दी है? Let me write here. Dulce shops, their own shops. दूसरी कौन सी दी है? Website, their own website, and the third one is their retail partners, different stores, different big stores, सही है ना? किस तरीके से ये ग्रो करेंगे, ऐसा ही है। यानी whether it's, अगर आपको याद हो, in the lecture we discuss NSOF model, याद है? Developing new product strategy, product development strategy, market development strategy, penetration strategy, diversity. What are these? These are all growth strategies, going towards growth, यानी कंपनी को आगे ले जाने वाली। तो ये सेल्स डायरेक्टर ने वही स्ट्रेटजीज बताई है, 3 बताई। शॉप्स, कि via shops how we can grow, how we can increase our sale, via website and the retail partners. आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना commercial acumen एक्टिव रखें, business sense अपना एक्टिव रखें। Let's start with each, okay? अच्छा, कोई आपसे वो नहीं कह रहा कि रिपोर्ट बनाओ या कोई ऐसी चीज, तो ऐसे हेडर फुटर इसकी जरूरत नहीं है। आपने सिंपल ये लिख देना है कि भाई the presentation or the notes to accompany sales director strategy. That's it. Just start with this. सही है? कोई क्योंकि कोई रिपोर्ट वगैरह कोई ईमेल ऐसी चीज नहीं। Let's start with the first one, and you all need to discuss each and every, ठीक है ना? तो हम सबसे पहले आ जाते हैं, let's talk about their own shops. Own shops से मुराद ये जो तुलसी, इसकी अपनी शॉप्स, जिस पे उसने बताया ना, उसने अपनी स्ट्रेटजीज में कहा है कि भाई 165 हाई स्ट्रीट शॉप्स आर मेन सेल्स चैनल, ठीक है, in Northland, this is the name of the country, require investment in refurbishment, last time हमने बात की थी remodeling, और थर्ड उसने क्या कहा है, desire staff training to improve customer experience and close 20 shops, जो कि लॉस वाली शॉप्स है उसको माइनस करेंगे ताकि प्रॉफिट मूव करें। अच्छा, अब हमें इस पे बात करनी है कि what do you think this strategy given by the sales director, how it's going to help in achieving strategic aim, यानी क्या ये आपको रैशनल लगती है, क्या ये एक सेंसिबल और एक गुड बिजनेस थिंकिंग लगती है? तो आए जरा इस पे बात करें, what are the benefits of having own shops. So own Dulce shop, सबसे पहली बात तो ये है, देखें, when the brand has its own shop, let's say when you're writing the answer, when you talk about the Dulce, or they already have this 165 high street shops, यानी जो खुद उनकी शॉप्स है, जैसे मैंने आपसे कहा M&M, कि M&M की अपनी शॉप्स भी, एक तो है जो हम M&M को रेक्स में देखते हैं, लेकिन एक M&M, मैंने लास्ट मीटिंग में आपसे कहा था कि they have their own shops normally in big countries or big cities downtown, जैसे वेगस है, तो उधर M&M की एक अपना स्टोर है, एक बड़ा स्टोर है, इट्स नॉट स्टोर, बल्कि मैं कहूंगा इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग है, जिसके अंदर यू सी एवरीथिंग। जब आप एकदम एंटर होगे तो आपको M&M का सब कुछ मिलेगा, ठीक है। देखिए इस चीज से फायदा क्या होता है, सबसे पहला फायदा है ना, व्हाट्स द बेनिफिट अ ब्रांड गेट्स व्हेन हैविंग देयर ओन स्टोर्स और सेलिंग फ्रॉम देयर ओन शॉप्स। सबसे पहली बात तो ये कि योर ओन ब्रांड इमेज, it enhance your brand image, it enhance Dulce brand image, उसको ये enhance करता है because they're already at the high street shops, so they have good number of traffic there. जब high street shop कर रहा है तो traffic है, जब traffic से मुराद वो गाड़ियों वाला ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक मींस ह्यूमन ट्रैफिक ऑलरेडी देयर, सही ना? अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी वाला नहीं पहुंच जाइएगा, सही है ना? इसका मतलब कई हजारों और millions of eyeballs हैं, they look at you and they look at your store. सिर्फ it's not only about the board or advertisement thing, it's a whole store. तो इसकी जो एक अपनी प्रेजेंस है वो ओवरऑल आपका ब्रांड इमेज वैसे ही इनहेंस करती है। प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, देखिए मुझे खुद अभी तक याद है, व्हेन आई वेंट टू वेगस, मुझे अभी तक याद है कि M&M पूरी जिंदगी मैंने खाई, बच्चों ने खाई, सबने, फैमिली, लेकिन द एक्सपीरियंस आई हैड इन दैट स्टोर ऑसम, यानी उसमें आपको छोटी गाड़ियां भी मिलेंगी, M&M की पूरी हिस्ट्री के ऊपर सिनेमा भी था, सिनेमा में मैं बिठा दिया विद 3D ग्लासेस। अब देखिए मैं तो इतना बड़ा होके भी M&M के स्टोर, इट वाज सो इंटरेस्टिंग, वो ये व्हाट एन एक्सपीरियंस इट वाज, सही है ना? कि बिठाया सबको 3D ग्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बैठे, M&M की स्टोरीज चल रही है, वही M&M के कार्टून्स आ रहे हैं, ये सब, ओ माय गॉड,
इट वाज ऑसम। फिर आप ऊपर जाए, आपके पास कितने वो वही जो उनकी चॉकलेट्स, आपको मिक्स एंड मैच बनना है, किसी ने स्विमिंग पे जाना है तो उसके टॉवल्स, किसी ने कुछ कॉफी मग्स लेने, यानी क्या नहीं था, यानी व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये एक सबसे अहम बात होती है कि व्हेन यू हैव स्टोर्स ऑन हाई स्ट्रीट और व्हेन यू हैव अ फिजिकल स्टोर, वी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टोर। देखो अभी दूसरी स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे वेबसाइट, डेफिनेटली यू कैन डू विद वेबसाइट एज वेल, लेकिन द कस्टमर एक्सपीरियंस, ये बड़ा अहम पॉइंट होगा। द कस्टमर एक्सपीरियंस, customer enjoys when he or she step in the store, सही है ना। तो not only it's a brand image thing but a good customer experience plus trust, it enhance customer trust। बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि कई लोग, खैर ये तो एक डेवलप सेटअप है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप होता है when they see physical store on the roads, on the street, सही है ना। ये आप किसी के लिए बात करें, whether you talk about the electronics or anything, या खुद आपका अपना ब्रांड भी हो, तो कस्टमर के लिए ये ट्रस्ट वाली बात होती है। प्लस for returns and exchange, I know with Amazon or with marketplaces and with all websites they have very good return policies and all that, and even a good return experience, सब कुछ होता है। लेकिन एक होता है अपने हाथों हाथ रिटर्न कराना एंड गेट राइट अवे द स्टोर क्रेडिट और कैश और व्हाटएवर। मुझे पता है वॉलमार्ट पे मुझे ऑनलाइन रिटर्न कराना है, ऐसा हो जाता है, बिल्कुल इजी है, सही है ना। इवन खुद आके पिकअप भी कर लेते हैं, बल्कि अभी मेरे पास लेटेस्ट मेरा पूल टेबल पड़ा है, बहुत वजनी है, वो 250 पाउंड का है, तो वो खुद ही वो उसकी वो रिटर्न शिपमेंट वगैरह करवाएंगे, खुद आएंगे लेंगे, एंड आफ्टर 10-15 डेज आई विल गेट माय रिफंड एंड एवरीथिंग। तो ये सब है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि कस्टमर को सम टाइम राइट अवे रिटर्न कराना होता है, एक्सचेंज कराना होता है, कोई और ऐसी वैरायटी देखनी। तो ये सारी चीजें दिस यू सी एट द स्टोर, सही है ना, ये स्टोर ही हेल्प कर सकता है उसमें। फिर इसके साथ साथ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सही है ना, इसी के अंदर एक तो मैंने कहा रिटर्न्स, एक्सचेंज और ये वैरायटी वाला, यानी यू विल हैव द, लेट मी राइट हियर, पेनिट्रेशन। ये जो आपका स्ट्रेटेजिक एम है ना टू ग्रो, आप अपनी उसी मार्केट में रहते हुए यू कैन सेल मोर प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि एक दफा वंस कस्टमर स्टेप इन योर स्टोर तो फिर वो एक चीज नहीं खरीदता। मैंने अभी आपको अपनी बात बता दी, यू एंटर इन कि भाई मैं ये कोका कोला स्टोर में एंटर हुआ हूँ या M&M स्टोर में एंटर हुआ हूँ, तो फिर यार 4 चीजें यू बाय मोर। ये बात मैं वेबसाइट पे भी कहूंगा, आई अंडरस्टैंड फॉर द वेबसाइट एज वेल एंड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन इसकी एक बात अलग हो जाती है कि एक दफा आप आ गए और रियल आपने फिजिकली उसको देख लिया, ये चीज तो अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। फिर और अहम बात, you shop via website, there is no human interaction, it's all the artificial intelligence and robotic works। लेकिन जब आप स्टोर में एंटर होते हो, कंपनी के पास, ब्रांड के पास ये ऑप्शन होता है to facilitate the customer and to show, you know, to show their good staff and good customer service। तो आप अपना स्टाफ और जो आपकी ग्रेट कस्टमर सर्विस है, ग्रेट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस भी मैं उसके लिए टर्म यूज करूं फॉर डोल्सी, ये आप अपने आंसर में लिखेंगे, ग्रेट कस्टमर सर्विस प्लस गुड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस व्हिच कैन नेवर बी अचीव्ड, सही ना, वेबसाइट और उसके थ्रू और एप्स के थ्रू अचीव नहीं होता। अ ग्रेट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस यू गेट इट विद द स्टोर, जो स्टोर से आपको मिलता है। एक और बड़ी अहम बात इसमें यह है, इसको अगर हम कनेक्ट करें आपके दुलसी के साथ, तो एक बहुत अहम बात इसमें ये भी नजर आ रही है, वो क्या है, वो ये है कि दे ऑलरेडी रीमॉडलिंग इट नाउ। देखो ये रीमॉडल कर रहे हैं अपने स्टोर, एंड व्हेन दे रीमॉडल इट दे एक्चुअली एडवर्टाइज इट। जैसे बहुत सारे स्टोर ये काम करते हैं, आपका अभी कुछ टाइम पहले मैंने रीमॉडलिंग देखी उसकी, सबवे यूएस में, ब्रांड न्यू गुड एक्सपीरियंस, यानी कलर स्कीम चेंज कर देते हैं, जो सेटअप्स हैं वो चेंज कर देते हैं, कोई नई प्रोडक्ट्स लेके आ जाते हैं, एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट समथिंग, नॉट नेसेसरी, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं, कलर स्कीम, प्रोसेस को थोड़ा चेंज कर देते हैं, पूरा डिजाइन ही चेंज कर देते हैं। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स यू नो एक्साइटमेंट, एक एक्साइटमेंट लेके आता है फॉर कस्टमर, एंड देन यू हैव द डेटाबेस और यू हैव द एडवर्टाइजमेंट चैनल ऑल दैट, एंड यू से हे वी हैव रीमॉडल्ड आवर ऑल स्टोर्स, सही है ना, वी हैव रीमॉडल्ड, ये बिल्कुल रिवैम्प हमने इसको कर दिया है। फिर क्या होता है, कस्टमर फिर आता है, चले यार हम लोग फिर देखने चलते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ से 20 मिनट दूर एक शहर है एलन, ठीक है, और मैं जहाँ रहता हूँ वो है मकीनी, अच्छा मैं राइडर भी हूँ। तो एलन का जो हार्ले डेविडसन स्टोर था
वो उन्होंने शट डाउन किया एंड दे ओपन अ न्यू स्टोर ब्लैक गोल्ड हार्ले डेविडसन। उन्होंने उसको मार्केट ही ऐसे किया, एक नया नाम दिया विद नेम, व्हाट वाज द नेम, ब्लैक गोल्ड के साथ। और कितना कस्टमर उसके बाद आया जस्ट टू सी द न्यू रीमॉडल्ड स्टोर। तो ये रीमॉडलिंग जो है ना, ये कस्टमर को एक बहुत एक्साइटमेंट और कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि यार क्या ऐसा नया कर रहे हैं, एंड दैट आल्सो इंक्रीज योर सेल एंड योर ब्रांड इमेज एंड ऑल दैट सेल। तो ये चीज भी है ना, यू आर एक्चुअली इन, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा गुड। फिर एक और मजे की बात ये है कि द क्लोजर, कि दे ऑलरेडी क्लोजिंग द स्टोर्स, फ्यू स्टोर्स आर क्लोजिंग। तो जब ये इसको शट डाउन कर देंगे, अल्टीमेटली देयर प्रॉफिट विल गो अप। क्यों? क्योंकि वो स्टोर्स व्हिच वर एक्चुअली द बैड एप्पल्स, वो अब आप माइनस कर रहे हो। तो नाउ दिस थिंग विल बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर तुलसी, तुलसी के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी ना ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो सेल स्ट्रेटजी है व्हेन वी टॉक अबाउट द what do you call this physical store, क्योंकि आप लॉस प्रोडक्ट्स बंद कर रहे हो और जो एक्सिस्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है they'll enjoy more। सही है ना। एक और मजे की बात होती है, when you close your product, especially when I'm saying to close your what do you call the stores, the bad apples, ultimately the traffic will increase in the existing stores। let's say अगर 165 stores हैं, तो अभी ये पूरा मार्केट शेयर को चला रहे हैं, ठीक है। जब इसमें से आप 20 माइनस कर दोगे तो 145 will take care। क्या ख्याल है? तो 145 पे ऑटोमेटिकली ट्रैफिक बढ़ जाएगा एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल गो अप। तो एक और अट्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरह जैसे मैंने अभी ये स्टाफ वाली बात की ना, तो स्टोर्स में एक फायदा ये भी होता है कि यू शो योर एम्बियंस, द म्यूजिक, द लाइटनिंग, द साउंड एंड द ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रांड्स। एक और बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो, यू वांट टू यूज इट। फॉर एग्जांपल फ्रेग्रेंस, सही ना। अब कुछ फ्रेग्रेंस ऐसी होती है जो बंदा बोलता है कि यार, या कुछ चॉकलेट्स ऐसी होती हैं कि दे ऑलरेडी हैव, या कुछ कॉफीज ऐसी होती है कि जिनके लिए टेस्ट एस्टैब्लिश है, तो कोई बात ही नहीं, आई डोंट वांट टेस्ट इट, that's the customer loyalty, I always buy this particular thing। लेकिन जब आप नई प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो तो जाहिर है चॉकलेट से तो कस्टमर ट्राई भी तो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू आइसक्रीम पार्लर, आप क्या चाहते हो? तो उस पर फिजिकल स्टोर होता है। ये तो नहीं होगा वेबसाइट में से आइसक्रीम निकली और आपने खा ली, ऐसा तो नहीं होगा ना। तरीके और भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इन फिजिकल स्टोर कस्टमर कैन हैव एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द तुलसी, तो राइट अवे वो चॉकलेट का एक्सपीरियंस लेगा, बाय, स्वाइप द कार्ड, सेल इज डन, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर स्ट्रेटजी, वेबसाइट। दिमाग में रखना है कमर्शियल एक्यूमेंट, बिजनेस सेंस, यानी आपकी जो भी बात हो यू नीड टू प्रूव इट। जैसे हम जो भी बात करते जा रहे हैं हम उसको प्रूव करते जा रहे हैं कि यस इट इज अ रैशनल टॉक, कि इसने स्ट्रेटजी बताई है, ये इस तरह रैशनल होती जाएगी। ये स्टोर्स को रखना यूं फायदेमंद है, यानी अल्टीमेटली द डॉलर्स विल कम इन द पॉकेट ऑफ तुलसी, ये आने चाहिए। आए जरा वेबसाइट पे बात करें। वेबसाइट नो डाउट इट्स एन ऑसम स्ट्रेटजी, ऑसम सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजी है, बिल्कुल। along with the store, this is a very good sales growth strategy, especially after this Chinese COVID-19। जबरदस्त। क्यों? The customers are now they are more inclined towards online shopping, especially those who are physical shoppers। कोविड ने उनको भी क्या बना दिया, जैसे फिजिकल टीचर्स को ऑनलाइन टीचर बना ही दिया ना बहुत सारे। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि जो फिजिकल बायर्स थे, कंज्यूमर बिहेवियर इज एक्चुअली चेंज। तो आफ्टर COVID-19 दिस इज वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन, working through website and selling it online। Selling online is very attractive option for Dulce, especially after COVID-19। ये बात आप लिख सकते हो, सही ना। ये इस पेपर में कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं, कोविड पे पूरी बात होगी, ठीक है ना। प्री कोविड, पोस्ट कोविड, यानी इट एक्चुअली इफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर, ये बात कि लोगों के लिए, फिर लोगों के लिए भी और शॉप्स के लिए भी कस्टमर को अकोमोडेट करना इट्स नाउ डिफिकल्ट, स्पेशली आफ्टर यू कैन टॉक अबाउट दिस सोशल डिस्टेंसिंग थिंग। उनको अट्रैक्ट करना, क्योंकि कितनी दुकानों के बाहर लिखा हुआ होता है, मैं कई दुकानें देखता हूँ लिमिट होती है कि भाई लेट्स से वी कैन अकोमोडेट ओनली 10 पीपल एट अ टाइम। तो जो बाकी 20 लोग हैं दे हैव टू स्टैंड आउट, उनको धूप में खड़े रहना है। इफ द प्रोडक्ट, इफ देयर कंपल्शन और समथिंग, दे नीड टू स्टेप आउट और फिर बाहर खड़े रहना। और वंस अगेन यू हैव व्हाट यू कॉल 6 फीट थिंग। तो ये सारी चीजें ये आपको देखनी होगी। अब ये देखना है आप पेपर कब दे रहे हो सकता है तब तक कोरोना वगैरह खत्म हो चुका हो, लेकिन आप ये बात जरूर कर सकते हो अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर, लेकिन हो सकता है आप सोशल डिस्टेंसिंग पे फिर बात ना करें, ठीक है।
लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला ये बड़ा अहम है। फिर बाहर आप वेट करें, वंस दोस पीपल आर आउट देन यू नीड टू स्टेप इन। अच्छा, इससे इदारों की भी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है कि उनको भी उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, ये वो फलाना, मास्क एंड ऑल दीज थिंग्स, तो कस्टमर्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बाइंग वेबसाइट दैट्स मोर कन्वीनियंट एंड ऑल दैट थिंग। ये तो सब आपकी होगी। प्लस इससे आपकी ग्रोथ कैसी होगी कि when you have physical store it only take care of one particular area, but when you have this online store you can have this international growth जो वो चाह भी रहे। वो तो अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी के यानी आउटसाइड, अपने कंट्री का नाम भी दो गया नॉर्थलैंड, और उससे ज्यादा आप बाहर जा सकते हो। तो इंटरनेशनल ग्रोथ यानी गोइंग बियॉन्ड द लोकल पर्टिकुलर एरिया, उससे भी आप आगे जाके डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स उनको भी टेक केयर कर सकते हो। फिर यहाँ पर भी एक और बात देखिए, मैं मानता हूं स्टोर में एक दफा कस्टमर इन हो गया तो वो दो चीजें और खरीदता है। सेम केस विद वेबसाइट, वंस यू मोटिवेट योर कस्टमर टू डाउनलोड द ऐप और मे बी अ सोशल मीडिया, आप अपने फेसबुक पे और उस पे ले आओ, देन यू कैन डाइवर्ट द ट्रैफिक टू द वेबसाइट। अब उस वेबसाइट पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि अब तो टाइम ही वही है कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम योर सोशल मीडिया, दे लाइक योर पेज एंड देन यू डाइवर्ट, देयर इज अ बटन buy now, learn more, shop now. Usse you can divert, Dulci can divert their social media crowd to their website so that they can buy, or they can have an app or something like that जिससे ये बाकायदा मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात गिविंग देम डिस्काउंट्स, शुरू में डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं कि भाई हम आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे इफ यू डाउनलोड आवर ऐप, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हो विल गिव यू दिस डिस्काउंट, इफ यू कम ऑन आवर वेबसाइट विल गिव यू दिस डिस्काउंट। यू कैन हैव CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपके पास पूरा डेटाबेस इसमें हो सकता है। कैसे? ओके, यू गेट 10% ऑफ इफ यू साइन अप, you get 10% off if you sign up with your email। अगर आप अपने ईमेल से साइन अप करते हैं हम आपको 10% ऑफ दे देते हैं। ऐसे होता ही नहीं होता, हम आपको इनिशियल फर्स्ट परचेज पे विल गिव यू 20% ऑफ अगर आप साइन अप करते हो। ऐसा है नहीं है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, फिर होता है इससे क्या है, once you have the database, once you have the email of your customer, एक दफा आपके पास आ गए ना वो ईमेल, तो फिर उससे फायदा पता क्या होता है, जरा तवज्जो सुनना। आपको पता चल जाता है यू नो द पैटर्न ऑफ दैट कस्टमर, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड CRM थिंग। आपको पता चल जाता है कि अच्छा भाई इसने इस टाइम पे बाय किया था, जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, आई एम अ रेगुलर कंज्यूमर ऑफ कॉफी, नेस्प्रेसो कॉफी, वो मुझे ईमेल भेज देते हैं। उनको पता होता है कि यार मैंने इतनी बाय कर ली है प्रोडक्ट्स, वंस द प्रोडक्ट इज डन, मैंने एक बार बाय कर ली। अब उसको पता है जब इसने इतनी स्लीव्स बाय की है फॉर द कॉफी, तो इसका मतलब 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद दे शूट मी एन ईमेल, एक ऑटोमेटिक ईमेल मुझे आ जाती है, okay, we have a good offer for you, or how about you forgot something in there, or we have a new flavor, or they know my flavor, okay, this is the flavor, तो ये मुझे एक रिमाइंडर मैसेज देते हैं जिसके बाद राइट में क्लिक एंड आई बाय, यानी उसको मेरी कंजम्पशन पैटर्न पता है। सेम केस विद बेस्ट बाय, वो भी यही काम करते हैं, उनको पता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग, एम आई एप्पल गाय और एम सैमसंग गाय और व्हाट, उसको सब पता है मेरे पास क्या चीजें। जब उसको पता है कि 2 साल पहले मैंने एक आईपैड लिया था, नाउ इफ देयर इज अ न्यू मॉडल लॉन्चिंग बाय एप्पल, तो बेस्ट बाय की तरफ से I'll get an email right away, hey, how about you upgrade your iPad, we have something new for you, how about you upgrade your Apple Pencil or something। तो ये क्या चीजें, ये इससे भी आप अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हो, and you can have a good customer relationship। ठीक है, तो ये the CRM thing, the AI thing, artificial intelligence, your SEO, search engine optimization, marketing and e-marketing, ये सब चीजें उसके स्ट्रेटेजिक एम को सेट करती हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें, when I talk about the growth and all that, not only international growth, you can enter in new product, you can have a good survey of new market segments, new markets, उनके बारे में बात हो सकती है। ऐसा है नहीं, आपको बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सही है ना, यहाँ पे और बड़ा समझना ज़ाहिर इन सब चीजों को जरूरी है। when you talking about this professional paper, if I was teaching F1 तो मैं ये बात ना करता, लेकिन SBL पे मुझे बात करनी होगी। आपको पता है मेरे घर पे मैगजीन आता है, now this is the good practical example of doing marketing। मेरे घर पे एक मैगजीन आता है, तो बहुत सारे आते हैं, तो उसमें एक ऐड होता है लेट्स से फ्रेग्रेंस का, as we talk about Tom Ford or Swatch और कोई भी, Gucci, कोई भी किसी XYZ fragrance, and they launch a new fragrance, new flavor, सही है ना, Oud Wort for example, Tom Ford Oud Wort, वो मेरे पास। अब जब मैं उसका ऐड देखता हूँ, very nice guy and lady and all that, very attractive, सब कुछ, like how should I order without
smelling without experiencing that fragrance, तो मैं क्या करता हूँ, वो क्या करते हैं, उसी मैगजीन के अंदर, उसी पेज पर, मैगजीन के अंदर भी नहीं, उसी पेज पे, राइट ऑन दैट पेज, एक जगह से उन्होंने उसको फोल्ड किया हुआ। नाउ दिस इज अ न्यू साइंस, उन्होंने उसको फोल्ड किया होता है, दैट्स अ न्यू वे, फोल्ड किया हुआ है, और वो कहते हैं कि जस्ट पील इट एंड इनसाइड दिस पेज देयर इज अ फ्रेग्रेंस एंड यू कैन स्मेल इट। वो रियल फ्रेग्रेंस, वो फ्रेश होती है उसके अंदर, उस पेज पे आप जब उसको ऐसे पील करेंगे उस पेज को, तो उसके अंदर जो फ्रेग्रेंस होगी वो दैट्स रियल फ्रेग्रेंस। तो इसका मतलब क्या कर दिया, they made the process, it's a new process, and they made it very easy and very attractive and very user friendly and very sale oriented, कि भाई ये देखो क्या ऐड है, oh my god, Tom Ford, जबरदस्त, where is the fragrance, oh my god, this, let's buy, क्लिक किया, बाय करें, अगर ई मैगजीन है या whatever, या if you have the app or something। देखो किस तरह चॉकलेट्स में भी वो ये कर सकते हैं कि वो आपको बाकायदा सैंपल भेज सकते हैं कि भाई हमने एक सैंपल भेज दिया, आप इसको टेस्ट करें, जस्ट ऑर्डर इट, सही ना, सेम केस दे डू विद कॉफी। लेकिन फ्रेग्रेंस का मामला बहुत ही डिफरेंट हो गया ना, कि you बोला डायरेक्ट फ्रेग्रेंस यूज कर लिया, तो ये चीज भी एक हो गई कि भाई आप न्यू मार्केट्स में एंटर हो सकते हो और अपनी प्रोडक्ट्स के इस तरह सैंपल वगैरह ये सब चीजें दे सकते हो। यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, when you have this website strategy, जब आपके पास ये वेबसाइट वाली स्ट्रेटजी है ना, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, you can grow with cross posting and I call it cross partnership, ये भी इसको कहते हैं, और you can have some e-branding collaboration, आप वो भी कर सकते हैं। कैसे हो सकता है वो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव Amazon रिटेल पार्टनर, ई स्टोर है ना, eBay, Amazon, ये इनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, दे बिकम योर रिटेल पार्टनर, ऑल्दो दिस इज द थर्ड स्ट्रेटजी विल टॉक अबाउट, लेकिन यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहा हूँ। इसी तरह क्रॉस पोस्टिंग वाली बात, ओके यू सपोर्ट माय वेबसाइट एंड आई एम गोना सपोर्ट योर वेबसाइट, हाँ समटाइम ऐसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, let's say you go on southwestairline.com, once you book the ticket on Southwest Airline, let's say you're going to Vegas, तो वेगस पे उतरते ही डेफिनेटली ऑल नीड अ कार, सही ना, टू ड्राइव, आपको चाहिए ना, तो साउथ वेस्ट की वेबसाइट पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, साउथ वेस्ट की वेबसाइट पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि हाउ अबाउट यू बुक a rental car from our website, we have a collaborating partner, सही है ना, उसी वेबसाइट पे, और अगर उस वेबसाइट पे जाएंगे तो they will be actually marketing Southwest Airline। फिर इसी तरह होटल, ये सारी चीजें देखो क्या हो रही है, आपस में एक दूसरे के साथ they do this collaboration thing। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है कि ये भी Dulce can also cross post, for example maybe with schools, उनके साथ कर सकते हैं भाई, if schools are doing any sort, क्योंकि schools के यहाँ पर बड़े होते हैं ऐसे collaborating partners कि भाई जो भी आपका elementary school होगा तो उसके साथ normally ये खाने पीने की दुकानें ये बहुत करती हैं, Chick-fil-A, McDonald's, all that, कि भाई all your students this weekend they'll get like 50% off or buy one get one free or maybe sometimes free burgers for the students। ओके इसी तरह जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनके साथ भी ये हो सकता है, ऐसे कोलैबोरेशन हो सकते हैं, क्रॉस पोस्टिंग हो सकती है कि भाई आप हमारी चीज को वो करो और हम आपको वो करेंगे, until unless there is some conflict of interest or competition going on। अच्छा, then the third strategy is the retail partnership, doing with Walmart and Target and all that, retail partnership, how is that? देखिए इसमें सबसे मजे की बात यह है कि you don't need to invest, no investment required, यानी you actually enjoying, जैसे इनका एक बहुत बड़ा रिटेल पार्टनर है बीबी, हाँ ये लिखा है ना, सेकंड लार्जेस्ट सुपरमार्केट, ह्यूज सुपरमार्केट, it means you as a chocolate guy, as chocolate manufacturer and producer, y'all don't need to spend like your own shop। In the first part you talk about 165 stores, 165 stores पे आपको खुद इन्वेस्टमेंट करनी होती है, but here you actually enjoying their strength and making their strength yours। ऐसा ही कि उनकी जो स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ को, यानी आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, दे एक्चुअली इन्वेस्टेड ऑन एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू पुट योर प्रोडक्ट एंड बूम, एंजॉय करना है आपने उसको, सही है ना। तो सबसे पहली बात ये कि विद दिस स्ट्रेटजी, विद रिटेल पार्टनर स्ट्रेटजी आप लिखेंगे Dulce don't need to do any investment, the whole investment is already done by the retail partners, सही है ना, एक बात। दूसरी बात, the traffic coming up because they're coming up buying electronics, और जो भी लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है, ग्रोसरी है, पता नहीं कितनी चीजें, जैसे मिसाल है वॉलमार्ट, सब कुछ है लेने आते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन एंजॉय
you can enjoy their traffic or their customer, उनके कस्टमर्स को you selling your own product, आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो उनको, obviously they are getting some sort of share, लेकिन आप उनको अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि उनकी स्ट्रेंथ को आप अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हो। फिर इनके साथ you can have a collaboration, एक collaboration कहते हो in terms of let's say employee, in terms of employees, okay, we'll put our product there in your aisles and your shelf सब कुछ, but we'll send our employees, हमारा employee वहां खड़ा है, यानी Dulci can send his own employee, the trained employee, जो उनको भी ट्रेनिंग दे सकता है या फिर खुद खड़े होके बेचेगा। आपने ऐसा स्टोर्स में देखा होगा, इवन इन पाकिस्तान ये सब होता है कि मसालों के रह के, लेकिन उस पे ऑल्दो XYZ नेम ऑफ द स्टोर, लेकिन उस पे जो शान मसाले की रिप्रेजेंटेटिव खड़ी होगी एंड शी विल बी डूइंग द काउंसलिंग एंड ऑल दैट। तो ये बात, शी विल बी selling providing the samples and all that। तो ये collaboration that could be a good thing कि अपने employees को भेज सकते हैं। फिर they can have a good placement, a placement plus which enhance the brand image, जो उसका brand image बढ़ाएंगे। अच्छी placement कर दी, इसके बगैर वो पैसे भी लेते हैं sometimes इस पार्टनरशिप के, कि भाई बाकी तमाम चॉकलेट्स आएंगी but our chocolates will have a a separate rack or maybe right on the first way हम लोग के रहेंगी चॉकलेट्स, या maybe on the cash counter, ये कोई अच्छी जगह होती है ऐसे। फिर यहाँ पर एक और बड़ी बात ये होती है कि you can grow as well in new segment, new market segment में आप grow कर सकते हो। इसमें कैसे? Within the store, आपको स्टोर इतने बड़े हैं कि उनके डिफरेंट सेक्शन है, एक है रेगुलर चॉकलेट्स का, एक है लग्जरी चॉकलेट्स का, तो उधर भी आपकी प्रेजेंस होगी। एक है बच्चों का सेक्शन, उधर भी आपने चॉकलेट्स डाल दी। तो Dulci can post within the store, like present the chocolate or put the chocolates in different segment as well, कि भाई इस जगह पे कैश काउंटर पे अलग चॉकलेट्स डाल दी, लग्जरी चॉकलेट्स वो उनके अलग रैक्स बना दी, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। प्लस you can also enjoy different events here, different events like let's say Black Friday, let's say सबसे ज्यादा जब चॉकलेट की बात करें तो ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, हेलोवीन, ये सबसे अहम इनका होता है कि जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉकलेट्स बिकती है। हेलोवीन सही ना, क्रिसमस, इसमें ये सारे ये वो इवेंट्स हैं जिसमें एंजॉय कर सकते हैं। नॉट ओनली यू कैन डू द रिटेल पार्टनरशिप विद दीज बिग स्टोर्स, you can also do the retail partnership with particular stores, कुछ खास स्टोर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई मैजिक स्टोर है, कोई ऐसे ही हेलोवीन स्टोर है, कोई और गिफ्ट शॉप्स हैं, यस गिफ्ट शॉप्स, उनके साथ भी you can do this collaboration thing। ये सारी चीजें हो सकती है कोलैबोरेशन। मैं आपको इस पे भी एक दो एग्जांपल देता हूँ। बड़ा अहम है, बहुत से सुना। देखिए मैंने बल्कि इस पे एक वीडियो बनाई थी, प्रोडक्ट प्लेसमेंट मेकिंग द बास्केट इसको कहते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी एग एंड मिल्क। आपको पता है these stores, the way they design the store, these stores are not designed like a mom and pop shop store. These stores are designed strategically. ये ऐसे डिजाइन होते हैं कि once the customer is in, उस कस्टमर को they make the customer walk all the store. For example, egg, अंडे रोज लेने होते हैं। अब बंदा अंडे लेने आएगा ना, तो अगर अंडे राइट ऑन द फर्स्ट रैक रखे हो ना, तो बंदा अंडे लेगा एंड गुड बाय टाटा। नो नो नो, अंडे आखिर में रखने so that he or she can walk। जब वो वॉक करेगा तो आपकी चॉकलेट को भी देखेगा, वो इसको भी देखेगा, एंड यू विल बी ऑफरिंग डिफरेंट न्यू गुड थिंग्स, डिफरेंट कूपन्स एंड ऑल दैट। बाय। जब एक जगह से ले लेते हो ना, तो वो दूसरी जगह ब्रेड पड़ी होती है, टेकिंग द बास्केट थिंग। जब ब्रेड लेने वहां जाओ, मिल्क लेने वहां चले जाओ, तो ये दो चार ऐसे चक्कर वो आपको कटाते हैं फॉर दोज आइटम्स। दीज आर द ब्रेन्स वर्किंग कि भाई वेयर टू प्लेस द प्रोडक्ट, किस जगह प्रोडक्ट रखना है। दिस इज द गुड पॉइंट यू कैन पुट कि Dulci can enjoy product placement science, the science they do it, कि भाई this which you call like making the bridging the basket or something, ऐसी एक strategy होती है कि जिसमें product को ऐसे strategically set किया जाता है so that the customer can walk all over and you look at all the good offers you selling, सही ना, selling offers जो आप दे रहे हो, maybe the coupons you using or downloading the app or and all that, आपको नजर आ रहा होता है। जैसे आप आइसक्रीम के कॉर्नर पर गए तो आपको बोलेगा if you download our app right now we'll give you $2 off, we'll give you $1 off and all that। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब कस्टमर वॉक करेगा, तो ये उसको आपसे करवाते हैं। इसी तरह कुछ खास एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप भी हो सकती है विद Dulci एंड रिटेल पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल
कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक सर्टन रेडियस में एक ब्रांड देता ही नहीं है, लेकिन एक खास रिटेल पार्टनर को देता है with a long term relationship and a long term partnership, or maybe if they achieve certain goals. मैं आपको इस पे एक फ्रेग्रेंस की मिसाल दूं, मिसाल के तौर पे टॉम फोर्ड के मेरा बड़ा हॉट फ्रेग्रेंस है, इसलिए बार बार इसका नाम आ रहा है। इसके साथ जैसे आपने बड़े स्टोर्स के नाम सुने होंगे, where they keep fragrance, for example मेसीज है, नॉर्थस्ट्रॉम है, नीमन मार्कस है, डिलर्ड्स है, ये स्टोर्स जो हर एक के ब्रांड्स रखते हैं, लेकिन आपको पता है इनका भी आपस में कंपटीशन होता है। दे वांट सम सॉर्ट ऑफ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। दुल्सी कैन डू दैट, ये काम भी हो सकता है। जैसे एक सर्टन माइल में जब मुझे परफ्यूम लेना होता है तो मुझे उस पर्टिकुलर स्टोर पे जाना होता है। अब मैं बोलता हूँ उसके बराबर वाले स्टोर पे हो सकता है मेरे पास उसका भी क्रेडिट कार्ड हो या उससे भी मेरे पास कोई ऐसी पॉलिसी हो, लेकिन जब मैं उसके पास जाऊंगा बोलेगा नहीं, वो बोलेगा मेरे पास ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नहीं है, दिस फ्रेग्रेंस हैज एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट इन दिस रेडियस विद लेट्स से विद द डीलर्स। या जैसे टॉम फोर्ड की खास फ्रेग्रेंस है, वो सिर्फ ऑफर ही करवाएगा कि भाई इधर। तो ये भी एक इसके लिए बड़ा अहम हो सकता है। लेट्स से स्पेशली विद बीबी, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट में उसमें बात भी करेंगे, स्पेशली विद बीबी या ऐसे बड़े लार्जेस्ट रिटेलर, उनके साथ दे कैन हैव एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म रिटेल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा जबरदस्त कर सकते हैं, जिसमें बड़ा गिव एंड टेक चल रहा होता है कि स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। ये चलता है कि भाई तुम मेरा ये ख्याल रखोगे और मैं तुम्हारे साथ एक्सक्लूसिव हो जाता हूँ इन दिस रेडियस और इन दिस सिटी और इन दिस स्टेट और व्हाटएवर। सही ना, ये डिपेंड करता है, कभी कभार एक बड़े एरिया के लिए भी एक्सक्लूसिव हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, और पॉइंट मेरे दिमाग में था, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वो हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में भी कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ भी एक बात कर लें। आपने देखा ये अपना प्राइवेट लेबल बेच रहा है। This Dulce is actually selling its own brand. सही है ना, तो एक फायदा इसको ये भी हो रहा है कि he's not only manufacturing the chocolate and sell it to Walmart, नहीं, Walmart अपने नाम से नहीं बेच रहा, Dulce अपने नाम से बेच रहा है। Dulce अपने नाम से बेच रहा है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, is not only using their investment and their strength and all that, but ultimately is going up with the passage of time। सही है ना, इसका अपना ब्रांड जो है वो बिक रहा है। Dulce सिर्फ बनाने वाला नहीं है, Dulce यूं समझे कि उसका वो नाम भी वो बिक रहा है। सही है ना, एक तो होता है ना कि सिर्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा होता नहीं, इट्स नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, सेलिंग विद इट्स ओन नेम। तो ये कुछ बहुत सारे बेनिफिट हैं जो Dulce एंजॉय कर रहा है with all these three strategies, and Dulce can enjoy। सही ना, आपने इसको सपोर्ट करना है यूजिंग कमर्शियल एक्यूमेंट। तो जो आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल हो वो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि एआई पे आप बात कर सकते हो, सीआरएम पे बात कर सकते हैं, वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे बात कर सकते हो, क्रॉस पोस्टिंग पे बात कर सकते हो। अदाकार एक दूसरे के लिए करते हैं ना कि यू विल बी टैगिंग मी एंड आई विल टैग यू। सही, तो मुझे पोस्ट करो, मैं तुम्हें पोस्ट करूंगा, दोनों के यूट्यूब चैनल चलेंगे। They can do this in business, they can do this cross posting, cross branding, so cross branding और इस तरह कहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी टर्म है जो आप यूज कर सकते हैं। फिर वेबसाइट क्यों, कोविड की बात कर दी, अपने स्टोर्स क्यों, उसमें क्या कमर्शियल एक्यूमेंट है, कैसा बिजनेस सेंस है, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो we'll be taking 3 benefits, we'll be enjoying our own stores, if customer wants to come, what are the benefits of that, we have our own good awesome website, और आजकल वेबसाइट भी बड़ी मैटर करती है, जिसमें वो 7 piece जॉब करते हैं, the physical evidence that also matters, not only because let's say if you're not going to the store, the physical store, you can do it on website। तो website भी इतनी attractive होनी चाहिए, user friendly, welcoming, all that, helping, chatting button, सब कुछ उस पे, and then you have retail partnership। 3 ऑप्शन। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होगी भाई, ये रिक्वायरमेंट वैसे तो बहुत ही आसान है, इसमें जो फाइनेंशियल वाली बात है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल उस पर जिक्र करेंगे। At the same meeting, the sales director advised the finance director that Dulce is currently considering manufacturing a range of 3 new luxury handmade chocolate product A, B and C for 2 retail partners, एक एक्सेल और दूसरा बीबी। However, due to a current shortage of a skilled labor, अच्छा अब ये इतनी आपको गेम पता है कि जब आप शॉर्टेज होती है, you call it limiting factor। Obviously it's not the paper of testing your F2 level skill, limiting factor, or maybe you call it the key factor। आपको सारी चीजें पता है किस तरह, how do you calculate the contribution, and then if it's require ranking contribution per key factor, क्योंकि यहाँ पर key factor क्या है, skilled labor hours। Okay, let's look here, अभी तो बहुत जल्दी हमने बोल दिया, लेकिन देख लेते हैं।
handmade chocolate technique, skilled labor in handmade production chocolate techniques, Dulce would currently be unable to supply both of the retail part. And there would be a trade-off. If you make Excel happy, they're gonna be sad. अगर इनको happy करोगे, तो definitely there's a trade-off. वो नाराज होंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक को आप पूरी तरह कर सकते हो. Should be prioritized and be completed in full, and which could be partially completed in order to optimize the use of the skilled labor available. है आप तो ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हो ना. Let's say we have this fixed number of skill hours. What to do? Do the maximum. Maximum हम क्या कर सकते हैं? Now, following this meeting, the finance director requested one of the finance team to complete a data sheet for you, relating to both potential orders and sale, as asked you to full evaluation. अब आपने assess करना, आपने judge करना. You are the consultant. Requirement क्या है? Prepare a report. Report बनानी है to the finance director, okay, from whatever you consultant, your date, and what is the subject. Subject is evaluation. I'm evaluating, doing some sort of evaluation between the two orders, Excel and BB. ताकि पता हो report देखो इधर communication के marks होंगे. Yes, communication skills. अच्छा, report में बताया ना क्या? ये तो हो गया header footer. Report में बताना क्या? Evaluate the financial and non-financial implication of Dulce prioritizing one order over the other. इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये नहीं कह रहा वो कि मुझे ये कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर और ये सब करो, नहीं. Assume करो कि you are giving priority to BB over Excel. फिर क्या होगा? Assume करो, यानी दूसरी दफा assume करो कि you are giving priority to BB over Excel. पहले मैं इसको priority दो कि let's say all the skill work hours, let's look here, कि जितने लेबर आवर्स हैं उसमें वो सारे एक जगह यूज नहीं होंगे. मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी देनी है. प्रायोरिटी, लेट्स से अगर हम एक्सेल को इन द फर्स्ट वन, ये असल में दीज आर टू रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली, दिस नॉट वन रिक्वायरमेंट. इसने लिख तो एक दिया लेकिन ये है दो रिक्वायरमेंट. अगर एक्सेल को हम फर्स्ट करते हैं और बीबी को सेकंड करते हैं, तो एक तो आपको कैलकुलेशन ये दिखानी होगी कि ओके, इफ दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स विल बी यूजिंग विद एक्सेल फर्स्ट. एक्सेल का जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, देन व्हाटएवर इज लेफ्ट, जो ग्रेवी बचेगी, विल पुट दैट ऑन बीबी. बीबी पे लगाएंगे, एंड व्हाट इज द dollar amount we saving. It's not about the revenue, we'll check the contributions. in a contribution हम देखेंगे. दूसरा जो करना होगा वो रिवर्स करना होगा कि अगर बीबी को सारा आवर्स लगाए, यानी गिविंग द प्रायोरिटी टू बीबी, और फिर जो व्हाटएवर द स्किल्ड आवर्स यू लेफ्ट, देन यू पुट इट ऑन एक्सेल. एक्सेल पे लगाते हो, फिर क्या कंट्रीब्यूशन आता है. तो एक तो डिसीजन मेकिंग आपने करनी होगी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल साइड. ये आप लोग कर सकते हैं. दिस इज वेरी इजी कि कितने नंबर ऑफ आवर्स है, क्या लगने. जो मजे की बात है वो क्या है कि एक तो हो गया ये वाला काम इन द रिपोर्ट, इन द सेम रिपोर्ट. इस तरह नहीं करना आपने कि एक रिपोर्ट बना दी फिर दूसरी रिपोर्ट बनाई. लो इन द सेम रिपोर्ट, बिकॉज वन रिक्वायरमेंट. इन द सेम रिपोर्ट, फर्स्ट यू डू द फाइनेंशियल थिंग. इफ आई गिव if Excel is prioritized over BB, this is the calculation. If BB over Excel, this is the calculation. मजे की बात, जो आपके प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो कम्युनिकेशन के हैं, तो आपका एक तो रिपोर्ट का फॉर्मेट, दैट मैटर्स, हाँ, स्पेशली द सब्जेक्ट लाइन, पंच लाइन एंड ऑल दैट. दूसरा क्लैरिटी, आपकी क्लैरिटी चाहिए इन कैलकुलेशन. किस जो द डायरेक्टर इज लुकिंग एट द रिपोर्ट, इज अ फाइनेंस डायरेक्टर. यू एज्यूम करें यू आर द कंसल्टेंट, इज योर कस्टमर, इज योर गाय, इज योर क्लाइंट, एंड दैट फाइनेंस डायरेक्टर ही वांट टू सी टू थिंग्स क्लियर हेडिंग के साथ. यहाँ पर अगर इससे करूंगा तो इतने डॉलर बचेंगे, इससे करूंगा तो इतने डॉलर बचेंगे. एक ही. तीसरी बात जो उसी रिक्वायरमेंट में करनी है, उसी सेम रिपोर्ट में, सॉरी इन द सेम रिपोर्ट, दैट्स द नॉन फाइनेंशियल टॉक. सही है ना. ये सब कुछ करने के बाद फिर हम अलग अगली रिक्वायरमेंट पाएंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट असल मजा नॉन फाइनेंशियल टॉक में. ओके, सबसे पहली चीज आपने पढ़ा सवाल एक्सेल और बीबी. देखिए, जो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आई वो क्या नजर आई, अगर आप एक्सेल को, तो सॉरी, अगर हम बीबी को प्रायोरिटी देते हैं ओवर एक्सेल, यानी अगर इसकी तारीफ कर ले और उसकी बुराई कर ले, एक ही बात हो गई ना. अगर हम बीबी को प्रायोरिटी देते हैं, अगर हम इफ वी गिव प्रायोरिटी टू बीबी ओवर एक्सेल as a consultant and as an evaluation guy and as good with good analytical skill. अच्छा, मैंने आपको कम्युनिकेशन के मार्क्स क्या बताए, रिपोर्ट का गुड फॉर्मेट, फाइनेंशियल क्लैरिटी, और नॉन फाइनेंशियल में पता क्या, आपके फ्लो ऑफ सेंटेंस एंड योर परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स.
आपके परसुएसिव आर्ग्यूमेंट से किस तरह फ्लो चलेगा. Look at the BB position. Look at the BB relationship. You already have, एक तो सबसे बड़ी बात is the second largest. It's a big fish. The first good persuasive argument is because if you give priority to Excel over BB, it means ultimately you are damaging the relationship. That's simple. क्या आप relationship खराब करोगे with the big fish? ये बात लिखनी होगी second largest, Northland and all that, and you have a long-term relationship and all that. So if you give priority to Excel over this BB, ultimately what will happen? There would be a grievance. ये grievance होगा जो कि एक non financial factor है. सही है ना, एक बहुत बड़ी ये social cost आ जाएगी इसमें. दूसरा मसला ये होगा कि the customer, if BB has grievance and if BB order is not fulfilled because of the Excel order, there is a possibility that BB might switch. रीजन देखो, बीबी को स्विच करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर्स, बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर प्रेशर. ऐसा थोड़ी है कस्टमर आएगा वो बोलेगा यार ओके ऑर्डर ही नहीं है इस इवेंट पे, हेलोवीन पे ऑर्डर ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही मौजूद नहीं है, व्हाट शुड आई डू? ओके आई विल कम नेक्स्ट टाइम. नो नो नो, दे डेफिनेटली गोना स्विच. मे बी वो वॉलमार्ट से टारगेट चले जाए. तो वॉलमार्ट क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार फिर हमें एक काम करना पड़ेगा कि वी नीड टू रिकंसीडर आवर रिलेशनशिप. सही है ना, आवर ऑर्डर्स, और मे बी विल गो विद सम अदर ब्रांड, और हम उनकी प्लेसमेंट करेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है क्योंकि कस्टमर वंस आउट इज गॉन ऑलवेज. ऐसे ही होता है, एक दफा कस्टमर गया, डोंट वेट देयर, फिर तो वो गया तो बस गया. तो ये बात बड़ी अहम है कंज्यूमर के लिए कि वंस द कंज्यूमर इज इन द स्टोर ही नीड्स थिंग्स. सही है, उसको चाहिए परफेक्ट थिंग. तो ये बड़ा अहम एनएफ वाली बात होगी. दूसरा जो नॉन फाइनेंशियल बात बीबी की है जो कि एक्सेल हमें नहीं दे रहा, वो पता क्या है? वो ये है कि our own private label. Excel क्या कह रहा है कि you Dulci, hey Dulci, you become the customer. Dulci, you become the manufacturer. तुम सिर्फ हमारे मैन्युफैक्चरर बन जाओ, that's it. तुम हमारे मैन्युफैक्चरर बन जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम अपने नाम से बेचेंगे. तो इससे हमारा स्ट्रेटेजिक एम अचीव नहीं होता. क्यों? हमारी अपनी ब्रांड इमेज और हमारी ग्रोथ का है. We are just making the product and wrapped under Accelerate या जो भी उनका नाम है उससे, ई से. लेकिन बीबी से हमें फायदा क्या है कि they are selling not only our product but with our own name. So that's help in achieving the strategic aim. ये वाला एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसके अंदर कि प्राइवेट लेबल और एक हमारा ओन ब्रांड. फिर बीबी की बात ये है ओल्ड वर्सेस न्यू. ओल्ड इज गोल्ड. There is a new relationship with Excel. Excel के साथ हमारा नया नया रिश्ता है. तो ये एक बड़ा मसला है. You never know the future. उन्होंने कोई आपको गारंटी नहीं की फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. उसकी कोई गारंटी नहीं है. जबकि इसके साथ ये क्या कह रहा है कि ओल्ड इज गोल्ड वाली बात भी है, प्लस देयर फोरकास्टिंग. इनकी फोरकास्ट अच्छी है कि विल गिव यू मोर बिग ऑर्डर्स. हम तुम्हें ज्यादा ऑर्डर्स देंगे उसके बाद 3 महीने बाद, यानी इनकी फोरकास्ट ज्यादा है. फिर अगर एक और चीज बड़ी अहम देखें तो मैं मानता हूं कि एक्सेल आपको एंटर करवा रहा है कुछ हैंडमेड चॉकलेट्स में, बट देन अगेन कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं. इनिशियली ऑर्डर जो है वो स्मॉल ऑर्डर है. देखो ये तो आप मान रहे हो, आपने फाइनेंशियल भी देखा होगा, फाइनेंशियल साइड मैंने भी कैलकुलेट करके देख ली कि फाइनेंशियली जो अट्रैक्टिव लग रहा है इन शॉर्ट टर्म एंड इन दिस केस वो एक्सेल ही लग रहा है, वो बीबी नहीं लग रहा. लेकिन अगर आप नॉन फाइनेंशियल साइड देखो तो आपको रैशनल होकर सोचना है. आप देखेंगे कि आप बोलेंगे नहीं यार इसमें रिस्क ज्यादा है, एक्सेल के साथ रिस्क ज्यादा है. एक बीबी हाथ से जाएगा, ओल्ड रिलेशनशिप, फ्यूचर फोरकास्टिंग, एक्सेल के साथ ऐसा कुछ नहीं है. ब्रांड इमेज, ये सारी चीजें आपको बीबी में नजर आती हैं, एक्सेल में नहीं. देन बीबी आपको हेल्प कर रहा है एंटरिंग इन न्यू सेगमेंट्स जो कि आपके स्ट्रेटेजिक एम का पार्ट है. वो आपको न्यू सेगमेंट में एंटर कर रहा है, न्यू लग्जरी प्रोडक्ट्स देके. देखो ना, एक जिसके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ओल्ड रिलेशनशिप है और एंटरिंग इन न्यू मार्केट, तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा बिकॉज यू बोथ हैव ऑलरेडी हैड अ गुड एक्सपीरियंस कि ठीक है हम साथ हैं. लेकिन एक्सेल के साथ नया एक्सपीरियंस है और वो कह भी रहा है कि ऑर्डर शॉर्ट है एंड आफ्टर 3 मंथ्स वी नेवर नो. पता चला आफ्टर 3 मंथ यू स्टैंड नोवेयर. एक्सेल भी चला गया गुड बाय करके, जस्ट एंजॉय द सीजन एंड ऑल दैट. और बीबी तो वैसे ही अपने नाराज कर दिया, उसको तो जाहिर है अपने रैक्स भरने. तो ये भी एक बड़ी अहम बात हो सकती है इसमें. मैं आपको यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट बताऊं. जब रिटेलर्स को अपने पीछे वेंडर्स को अट्रैक्ट करना होता है ना, तो उनको कुछ गोल्स मीट करने होते हैं. वंस अगेन मेरा ही टॉम फोर्ड,
डिलर्ट्स अगर टॉम फोर्ड को कहता है कि हे टॉम फोर्ड, हे द कंपनी, how about I keep Tom Ford new thing, the or the oud wood or whatever, any XYZ fragrance, and you take it out from my competitor Nordstrom या Neiman Marcus से तुम ले लो. तो ये पता है उसको क्या बोलेगा? I'm giving you certain goals for your existing product, not for this product. अगर तुम उन goals को meet कर लोगे, okay, I'll take the contract from them और मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ. तो इसका मतलब कुछ गोल्स मीट करवाते हैं जो पीछे वेंडर होते हैं. तो दुलसी के लिए ये एक बड़ा अहम पॉइंट है कि बीबी फोरकास्टिंग में भी अच्छा है, एग्जिस्टिंग भी अच्छा जा रहा है. तो इसके लिए ज्यादा इंक्लाइन होना, यानी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ना, उसमें क्या ना, रिकमेंड विद जस्टिफिकेशन. तो आपने ये सारे आर्ग्यूमेंट्स देने, ये सब इट्स अ वेरी सिंपल. मैं कहता हूँ ये F5 जैसा सवाल है, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल की. इसमें आपने बड़ी सिंपल गुफ्तगू, यानी सिंपल से, यानी इतना सिंपल केस बना दिया. मैंने कहा ना इट्स अ चॉकलेट केस, इतना चॉकलेट केस बना दिया कि वो खुद बता रहा है. देखो अहम पॉइंट सामने, ओल्ड वर्सेस न्यू, फोरकास्टिंग, गुड ऑर्डर्स, फिर ये लर्निंग कर्व वाली बात, लर्निंग कर्व मेथड. क्योंकि अगर कहीं भी आप कोई नई प्रोडक्ट में जा रहे हो और आपको पता है कि फ्यूचर में यू गेट मोर ऑर्डर्स, तो ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे, बिग ऑर्डर्स विल गेट. तो आज जो आप अपने स्किल्ड वर्कर्स लगा रहे हो ना, इफ दे वर्किंग टुडे, दे नो इन फ्यूचर दे विल बी मोर एफिशिएंट, दे विल बी मोर स्मार्ट, क्योंकि आगे ऑर्डर बढ़ा है. और अगर एक जगह ऐसा है कि यार शॉर्ट टर्म में एक खास प्रोडक्ट ही बनानी है, क्या फायदा, यानी अभी भी काम करेंगे, यू नीड टू गिव, यू नो, स्पेंड मोर टाइम एंड मोर मनी एंड ऑल दैट इन ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग वगैरह सब कराओ, और पता चला आगे भी कुछ नहीं है, दैट्स यूजलेस. यहाँ से भी गए, वहां से भी गए, ऐसी बात. तो सीधी बात है, आपने बातें दोनों तरीके से करनी है. देखो इसमें केस सारे एसपीएल का केस है, तो मैं मानता हूं दिस रिक्वायरमेंट इज प्रीटी डिसेंट एंड वेरी इजी. लेकिन देखो इसने आपको कंफ्यूज क्यों किया, कंफ्यूज ऐसे किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ही करते हैं. ये मैं आखिरी बात कर रहा हूं एंड देन विल एंड अप, सही है, जस्ट लास्ट 2-3 मिनट्स, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे. देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि इट्स अ वेरी कमर्शियल पेपर, तो हम सारे जो फैसले करेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स, वो करेंगे, वेदर इट्स एथिकली बैड और सोशली बैड एंड ऑल दैट. नो, आपको लुक एट दिस टाइम, आज का जो टाइम है, यू नीड टू कंसिडर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ फैक्टर, सोशल फैक्टर, एथिकल फैक्टर, ऑल दैट. ये होता था P3 में, मुझे याद है बच्चे गलती करते थे, वो बोलते थे सर सारे फैसले करेंगे बेस्ड ऑन कमर्शियल थिंग. नहीं, पेपर के अंदर देखो, व्हेन यू आर बिजनेस मैनेजर, व्हेन यू आर इन द सी पोजीशन, यू नीड टू सी द सोसाइटी एज वेल, द प्लैनेट एज वेल, क्योंकि the bigger you are, the greater the big fish you are, you'll have more responsibility, सही ना, towards the economy. क्या टैक्स कितना, जैसे Amazon पे कितना शोर है कि यार ये Amazon यूएस को टैक्स क्यों नहीं देता, ये भी एक बहुत बड़ा शोर है. आपको याद है बीच में बर्गर किंग अपनी रेजिडेंसी चेंज करा था फ्रॉम यूएस टू कनाडा, वहां पर एक बड़ा शोर खड़ा हो गया था और सेनेटर्स और इन्होंने कैंपेन चलाई कि लेट्स बायकॉट बर्गर किंग, डोंट बाय इन यूएस. क्यों? क्योंकि बोला तो इनमें टैक्स ही नहीं देगा. तो जितने आप बड़े होते हो, greater and the grow, the more you grow, you have more responsibility not only towards your shareholders but towards your other stakeholders as well. मछलियां, पहाड़, दरख्त, सब की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. तो यहाँ भी जब आप फैसला करेंगे तो आपने, you actually talking about the whole organization and the survival of the whole organization. तो आपने कस्टमर्स का, रिलेशनशिप का, इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए then take the point. अपना बहुत सारा ख्याल रखें and I'll see you in the next meeting. Next meeting में we'll do the remaining requirements. See you. Goodbye.